ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम। तो आज कुर्सी में आप पढ़ने के लिए हम लोग दे लिव विद गॉड इस पुस्तक से, चेतन जी के पुस्तक से ठाकुर के दो गृहस्थ भक्तों की जीवनी का थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। छोटा सा जीवनिया है, ज्यादा नहीं है। दोनों दोनों जीवनिया कुल मिला के 15 पेज ही होते हैं। अरे ये है उपेंद्र नाथ मुखोपाध्याय और दूसरे हैं हरमोहन मित्रा। हरमोहन मेहता का तो 3 पेज ही है और देवेंद्र का भी, ये उपेंद्र का भी थोड़ा सा ही है। तो आज थोड़ा से में हो जाएगा। अब कौन पहले समरी कोई करेगा? हाँ जी महाराज, मैं कर रही हूँ जी। हाँ करो। Pranam to Revered Maharaj Ji and to Thakur Ma and Swami Ji. They lived with God on Upendra Nath Mukhopadhyay. According to the Bhagavad Gita, 4 kinds of people worship God: those who are afflicted, those who crave wealth, and those who seek knowledge, and those endowed with wisdom. That is, Artharthi, Jigyasu, and Gyani. All these worshippers are worthy because their actions and thoughts are directed towards God. Even though God is the Kalpataru, he only fulfills those prayers which ultimately benefit the devotee. Upendra initially sought wealth and material prosperity from Sri Ramakrishna, but his devotion to the Master kept increasing even when he acquired material wealth. Swami Ramakrishnananda mentioned how Upendra financially prospered after Sri Ramakrishna ate the food offering that Upendra brought. Upendranath Mukhopadhyay was brought up by his mother and maternal uncle in Ahiri Tola, West Calcutta, at his uncle's home. As they were poor, Upendra started working after completing primary school. Upendra worked at a bookstore arranging and selling books and was soon able to purchase that bookstore with his aunt's help, which improved his income by becoming the book distributor. Upendra's 2 neighbors, Devendra and Adhar, were devotees of Sri Ramakrishna, and thus Upendra met Sri Ramakrishna probably at Adhar's house. Upendra started visiting the master regularly at Dakshineshwar. Upon Sri Ramakrishna's asking, Upendra brought his household deity Bhagwan Narayan's prasad for the master, and the master ate a little of it. Despite being grounded, Upendra's kind aunt let him visit the master. She even sent prasad to Dakshineshwar another day. Upendra started attending Sri Ramakrishna's festivals and kirtans at devotees' homes. At Devendra's home in April 1885, Upendra had the great privilege of massaging the master's feet. Upendra also actively worked for master's birthday celebrations at Dakshineshwar with other devotees. The master also selected Upendra's bride, and Upendra married her in 1885. Lacking education and money and being humiliated by his uncle, Upendra worked hard and sought divine grace from Sri Ramakrishna. When a devotee said to the master, "Sir, you did not bless Upendra," then Sri Ramakrishna said he knew Upendra's wishes, that his small door should be big, and it will be. On 1st January 1886, the master inquired Upendra's wish and said Upendra would get plenty of money. Upendra had true devotion for the master
along with the desire for wealth. After the master's cremation on August 16, 1886, at Kashipur, when Upendra went to bathe, he was bitten by a poisonous snake. The devotees tied his upper leg to prevent the poison from spreading and then cauterized the wound. Upendra's wound finally healed after 5 months. The master's grace saved Upendra's life. Upendra had a wonderful business sense, Swami Vivekanand said. Upendra brought a small printing press, started the Bengali magazine Gyan Ankur, in which Swami Vivekanandji's translation of the Imitation of Christ was published. Upendra also published an English learning book named Rajbhasha, which sold very well. Then Upendra became well established, rented a two-story building, and published Basumati, a weekly Bengali newspaper. His publishing was highly successful and included established writers and a wide ensemble of spiritual and scriptural books. On Swami Vivekanand's return to Calcutta from the West in February 1897, Upendra was instrumental in wide publicity of Swamiji's upcoming arrival. Upendra posted placards all over Calcutta, Baranagar, Kashipur, Bhawanipur, and Alipur, distributed 50,000 handbills and 10,000 of the Basumati special issue with Swamiji's photo and a welcome song from Girish. Girish was overjoyed to hear of Upendra's service, and all brother monks and devotees' anxiety was greatly relieved. An overwhelming welcome crowd of 20,000 people gathered to receive Swami Vivekanandji at the train station at Sialda. During the First World War, Upendra even started a daily newspaper. Upendra's mind remained fixed on God even though he desired and acquired wealth. Upendra's magazine Basumati spread the message of Sri Ramakrishna and Swami Vivekanand. With Swamiji's advice only, Namo Narayanaye was the front page caption of Basumati. Upendra frequently consulted Swami Vivekanand and Swami Yoganand on business matters. Every November, Upendra would celebrate the Ramakrishna festival with a grand feast and kirtan at his home. He would decorate the master's picture with flowers and garlands, and many monks would participate in the festivities. Several monks would visit the Basumati Sahitya Mandir or Sri Ramakrishna's inn, and Upendra would serve them wholeheartedly with sweets and delicacies and arrange for their return carriage. Swami Adbhutanand stayed at Upendra's Basumati press for some time. Upendra even arranged for his pilgrimage to Puri. Swami Vivekanand was highly pleased to hear of Upendra's generosity and prayed to Sri Ramakrishna, Master, please bless Upendra. Having emerged from extreme poverty, Upendra's heart was loving and compassionate towards the poor. He would gladly help the needy with money, jobs, and even tell a lie to save them from trouble or jail time. Once, Upendra found that a dishonest collector had misappropriated some funds, but Upendra saved the collector as the collector had visited Sri Ramakrishna a few times. Another time, when asked by a man for financial help for his daughter's marriage, Upendra gladly donated his whole day's income of 300 rupees. Upendra was a self-made man and wore dhoti shirt and a black silk coat. He had a father-son relationship with his employees. Upendra, in his prosperous journey of publishing, always saluted Narayan and sought Sri Ramakrishna's blessings. Sri Ramakrishna was the presiding deity of his office cum mandir. He kept his spirituality private. Upendra was loving and jolly and was well respected by great writers and thinkers of Bengal. If any writer's talent was stifled from lack of funds, it would pain him. Upendra's son Satish was also highly principled like his father and
was also very successful. He even tried to become a monk at Belur Math, but the Swamis persuaded him to be a businessman instead. By his guru's blessings, Upendra became truly wealthy. He attributed his success to the master and knew that the master was guiding him in the right direction and protecting him from worldly attachment. Harmohan Mitra. According to Hindu scriptures, it is a blessing to be the recipient of Lord's anger. Just like a loving mother disciplines her child by force and with the child's best interests in mind, she chastises him. So God's displeasure is always for the devotee's own good. Harmohan Mitra was born in a poor family and raised by his uncle. Harmohan's mother visited Sri Ramakrishna several times and encouraged her son to visit Dakshineshwar. Initially, when Harmohan was 17 or 18 years old, the master was very fond of him. Later, Sri Ramakrishna became indifferent towards him due to his worldly tendencies. The master asked Harmohan to go away and said that he didn't even feel like touching him. All this was because Harmohan could not visit the master when asked because he was busy in family troubles. He had moved to live separately with his wife, so he got tied up with duties. On Kalpataru Day, Sri Ramakrishna touched his chest and said, "Let it be postponed today," meaning that divine touch transformed Harmohan's life, and he later had visions and spiritual experiences. Harmohan was very devoted, sweet, and Catholic. Swami Vivekananda was very fond of him. Swami Vivekananda discussed with Harmohan on the teachings of Sri Ramakrishna. How masters' um, single teachings can make for books on philosophy. So Harmohan then asked Swamiji to explain how the master's story of the elephant god and Mahout god, which illustrates serving God in all beings, could become a book on philosophy. Then Swami Vivekanand continually discussed with Harmohan for consecutively for 3 days and then Swami Ji launched into those controversial doctrines of free will versus predestination and self effort versus the will of God. Harmohan also spread Sri Ramakrishna and Vivekananda's literature. He compiled free copies of the teachings of Sri Ramakrishna by several people such as Suresh Chandra Datta and books by several others including Brahmo Leader, Pratap Chandra Mazumdar and Max Muller. But Swamiji did not like the cheap quality of the materials that Harmohan used in his books. Harmohan was exceptional that he undertook the risk of publishing books. Harmohan was a good speaker. He defended image worship after a lecture disparaging it. He also spoke up when some Christian missionaries disparaged Hinduism. He gave Thakur's photo to a young boy who asked for it. So he only quoted a very less price for it. And then he found out that the boy had been sent to by Swami Yoganand, and he was very happy to meet that young devotee, and he continued to be in touch with him. Light. Okay. Mute, unmute karo. Sorry. He even donated jewelry at Radhu's wedding. And then he would feed the dogs when he saw them. He fed them materials from the nearby shops. And Harmohan was very blessed because he got the master's divine touch and
the delayed blessing on Kalpataru Day, which transformed his life. And even he had visions and spiritual experiences later in his life. Hari Om Tat Sat. Jai. Okay, very good. Unfortunately, we have got only a very small life of Harmohan. There is not much of material is there. Anyway, but they are also good, Thakur's related devotees, and we like to read them. Now, shall we have questions? Yes, Maharaj ji, yes. So, Itu Ghosh has a small question, one question. Can we do that? Yes. Pranam Maharaj. My only one question. Upendra and Harmohan both became worldly family men, which the master did not want. But both of them remained very much devoted to the master throughout their lives in spite of odd circumstances. So, was it because of Sri Ramakrishna's blessings or because of the true devotion they were blessed by the master? Both. Both. They had true devotion as well as Sri Ramakrishna's blessing. Because of that, they continued to remain devotees of Thakur. And please remember, Sri Ramakrishna never disregarded the household disciples. No. He always loved them. Yes. It is not that only direct sannyasins were his disciples. He had so many householder disciples. So Thakur had come for those people also who has got desire. Say, for example, this, what do you call, Harmohan. No, Upendra. So Upendra wanted money. All right. What is there? The householder has to have money. How many given grahasthas are not attached to money? How many sannyasins are also not attached to money? अरे समझे? प्रणामी मिलेगी तो 100 रुपए के प्रणामी के बदले 1000 रुपए की प्रणामी मिलेगी ना, तो थोड़ा चेहरा ज्यादा मुस्कुराने लग जाएगा। ये तो ऐसा है पैसे का मामला भाई, तो उसमें तुम इसको क्यों ऑब्जेक्ट? महाराज जी आश्रम, महाराज जी आश्रम मेरा के एक ही अंदर क्वेश्चन था। क्या बोलो रे भाई? नहीं, हाँ। महाराज जी मैं ये कह रहा था कि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो प्रणामी देता है, जो आश्रम के अंदर ज्यादा सेवा करता है, उसकी इज्जत ज्यादा होती है। और वो भक्त जो ज्यादा भक्त है लेकिन प्रणामी या सेवा नहीं कर पाता किसी कारण से, तो बेचारा ठाकुर के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा निग्लेक्टेड हो जाता है। जो है ठाकुर का संसार जो है वो देखे हो। चलो अच्छा, चलो कुंडू। Yes, Maharaj. Maharaj, the first question is on the same line. In both the biographical sketches, we find an overwhelming love for God, but there is hardly any mention of their spiritual practices. In the divine play of Ramakrishna, what is their role? Do they exemplify that if one can develop love for God by any means, nothing else is required? You see, Sri Ramakrishna disciples are various types. Yeah, remember. There are some with deep faith, with little sadhana. There are others who have done very much sadhana. There are people with sadhana and faith, both.
The most important thing in this is yearning Yes. or love of God. Please remember this. Yearning for God, love for God, how sincere I am in spiritual life. Do I need the spiritual life or not? This is Yes. the most important thing. Love, yearning or love for God. This is most important. And the combination of various types you get in various people. Each one has to find out, decide how to do yearning, love. Is it easy? It's not easy. So, Sri Ramakrishna has the disciples of various types, but these are the principles. Love for God, yearning for God. And then sometimes there is intense yearning, so no sadhana, there is hardly doesn't appear to be any sadhana. जी. और कुछ लोग हैं सारा जीवन साधना करते हैं, लेते हैं, भगवान से प्रेम नहीं होता फिर भी. We are so many people sitting together, Zoom, so many years we are going on. Do we have we developed love for God? No. सारे दिन जिंदगी तो संसार में घूमती रहती है, सुबह शाम थोड़ा सा जप कर लिया बस. भगवान के प्रति प्रेम कहाँ है, yearning कहाँ है? So this is a very important, you asked a pertinent question about sadhana. If a person has very sincerely, really love for God, his intensity itself will become a sadhana. Without sadhana, ध्यान जब इत्यादि की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपना प्रेम उसको ले जाएगा. ठीक ठीक. ठीक महाराज. Then page 345, Upendranath left his first job because his employer was dishonest. This shows the strength of his character. Yet, Sri Ramakrishna was unable to take the food brought by him as told by Swami Ramakrishnananda. Why is it so? They might have had some other bad character, some other state of bad character, we don't know. There are so many characters of him. ये स्टोरी में नहीं है. यस हाँ, ये स्टोरी में नहीं है यहाँ पे. तो ठाकुर ने क्यों ठाकुर को हुआ, अब ये कैसे पता चलेगा? Something was there which was it might have been hidden inside in his mind, etc., etc. So we don't know. या ना तो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि सब हैं. So some he may be straightforward in one particular thing, but in other things there will those faults might have been there. So we don't know. ठीक. Then a general question. Sri Ramakrishna said Naradiya Bhakti is the most suitable spiritual practice in this age. But to Master Mahasa, he also said about Nitya Nitya Vastu Vivek. Now, how does the Bhakta do this? Is his way of vichar different from that of a Jnani? Yes. No, देखो. ऐसे ज्ञानी's path is of vichar, clear cut. If a person is doing vichar, he is following a path of jnana. But the mixture of jnana bhakti, mishra bhakti, ityadi, there are so many combinations of bhakti are there. Swami Ji ने तो यहाँ तक कहा है, do it by one, more, all, and be free. ज्ञान भक्ति कर्म ज्ञान, each holy goal is to manifest the divinity by controlling nature, internal and external. Do this by work, by worship or psychic control, or by reason and be free. चारों भाग थी. एक के साथ करो या दो के साथ. तो ज्ञान के साथ में ज्ञान मिश्रा भक्ति जिसे बोलते हैं ना, एक ज्ञान मिश्रा भक्ति हो सकती है.
या फिर प्योरली ज्ञान भक्ति, ज्ञान परक भक्ति हो, ज्ञान परक मार्ग हो सकता है। तो इसमें देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्रडिक्शन इन दिस। ही कंबाइन दिस and you may combine also. There is मतलब do vichar also and do bhakti also. There is no contradiction. मतलब भक्त के संसार से विचार मन जो को हटाना, संसार से मन को हटाना हो तो विचार करिए, ये संसार तो भयानक है, पकड़ में आ जाएंगे, पैसे से नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है, सब ये विचार कीजिए और अपना भक्ति भी कीजिए, उसमें क्या लो। और फिर देखा जाए तो भक्ति योग जब पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे सद्गुणों का वर्णन आता है, और विचार का डेफिनेटली वर्णन नहीं आता, लेकिन सद्गुणों का बहुत वर्णन। सो देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्ट्रडिक्शन, either they can be both two different paths or both can be combined together. मतलब साधक के लिए संसार से मन हटाना जरूरी है, जैसे भी करो वो हाँ, करना। हाँ, वैराग्य तो होना पड़ेगा, चाहे भक्त होवे या ज्ञानी। बिना विचार की वैराग्य नहीं आता। और वैराग्य यो भी एक बार झटका लगे, डंडा लगे तो भी वैराग्य आ जाता है। हाँ, लेकिन संसार में दुर्भाग्य यह है कि लोग इतने मूर्ख रहते हैं कि रोज डंडे पड़ते हैं तो भी विचार वैराग्य नहीं होता। ये पूर्ण विवेक बिल्कुल। का भाव के कारण। तो अलग अलग ग्रेड्स हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसे डर रहते हैं कि इतने ठोकर खाकर भी वैराग्य नहीं होता, और दूसरे हैं कि दूसरे ने ठोकर खाई है उसको देख के खुद को ऐसा वैराग्य हो गया कि संसार। बट वैराग्य आवश्यक है, भक्ति का मार्ग भी हो तो भी वैराग्य आवश्यक। ठीक है, चलो ठीक। यस महाराज, दिलीप प्रणाम भाई। हाँ। हाँ, प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। हम्म, महाराज जी, my first question, any joy in life comes from spirit, not from matter. Maharaj ji, your spirit means what? देखो दिलीप भाई, जी। तुमने सुनो, लड्डू खाया, हाँ आनंद आया ना। हाँ, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, ये आनंद जो है वो हाँ, लड्डू में है ना, लड्डू में है ना। नहीं लड्डू में नहीं, हमारे माइंड में। हाँ, तो बोल दिया ना आपने। ये माइंड जो बोल रहे हो ना, हाँ अगर मन मन भी चिंतित होगा तो जी। भी लड्डू का सुख नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा जी जी। मतलब ये है कि आनंद जो है वो माइंड में भी नहीं है और लड्डू में भी नहीं। हाँ, नहीं है कुछ और है जिसमें आनंद है। जी। हाँ, वो कौन इसको सी ये चीज? आत्मा आत्मा बोलते हैं, सोल बोलते हैं, स्पिरिट बोलते हैं। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। एनी joy in life comes from spirit. ओके महाराज जी, राइट। जी जी, समझ गया ना। बराबर। देखिए, हाँ हाँ, हम बिल्कुल समझ समझते में आ हैं कि गया। हम समझते हैं संसार की चीजों में सुख है, अभी बता दिया नहीं है। नहीं हम समझते हैं कि हमारे मन में सुख है, वो बता दिया कि मन में भी नहीं है। नहीं, कुछ हाँ ऐसा है, जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा का आनंद या स्पिरिट का आनंद प्रतिबिंबित होता है। जी जी, बराबर आनंद जी। है। हाँ, आनंद ही अलग है। हाँ, ये आत्मा, ये हमारा शरीर और मन जो है उसमें सहायक में, उसके अभिव्यक्त करने के सहायक है बस। लेकिन अच्छा, आत्मा में, सोल जो है, स्पिरिट में, इसमें आनंद। ओके, बराबर जी महाराज जी, जी जी, बराबर जी। नाउ माय मतलब सेकंड क्वेश्चन। नहीं जी। महाराज, एक मिनट एक मिनट। महाराज, इसके हाँ मतलब आनंद कोई क्वालिटी नहीं है, आनंद बाय इटसेल्फ एक रूप है आत्मा का। एक्सपीरियंस नहीं हो, हाँ यू मे हाँ कॉल हाँ। इट एक्सपीरियंस। अब आनंद जो है, तो लड्डू खाने का आनंद और कुछ गाना सुनने का आनंद, तो आनंद जैसी चीज जो है ना, वो एक तो अलग चीज है। जी वो इट इज
you can say quality of the soul, आत्मा जो एक्सप्रेस होती है. अच्छा अच्छा, हाँ. ठीक महाराज. महाराज जी, इस केस में आत्मा का अभिव्यक्ति थोड़ी होती है. नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है, आत्मा के आनंद की अभिव्यक्ति हो रही अच्छा 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 जी. अब जैसे आपने बताया महाराज जी कि लड्डू खाने का जो अनुभव हुआ, अच्छा, वो आत्मा को हुआ ना, अभिव्यक्ति आत्मा कर रही है. है. आत्मा को नहीं होता, आत्मा आत्मा का जो चैतन्य है ना, वो अभिव्यक्त होता है, उससे आनंद होता है. आत्मा का चैतन्य होता. ओके जी. ओ राइट महाराज जी. नाउ माय सेकंड क्वेश्चन. The custom in high class Brahmin had been married several times. Maharaj ji, Brahmin class marries 3-4 ladies and keep them in their mother's house. What is the logic behind it? Is it a status symbol? It has अरे nothing to do तुमको with क्या it. करना है? अरे यार, इससे तुमको क्या करना है? ये क्या क्वेश्चन पूछा है फालतू की बात? तो इसलिए मैं छोड़ दिया इसको. जी नहीं महाराज जी. नहीं, ये क्वेश्चन, ये जो एक ऐसा क्या क्या करना है, कर इसका क्वेश्चन से अपने को क्या करना? नहीं, वो अपने करे, कुछ जो नहीं करना करना. है तो करे. अच्छा जी. महाराज जी, why master was interested to get Upendra married? हाँ, this is my just question. Master was interested that Upendra should get married. उन्होंने देखा होगा कि उसमें विवाह की इच्छा है. उन्होंने पहचान लिया होगा कि यह हाँ. संसारी जीवन के प्रति इसका आकर्षण है, इसलिए उन्होंने कहा चाहता था कि ये शादी हो जाए तो सेटल्ड हो जाए. ओके ओके जी जी जी. हाँ महाराज. हाँ स्वामी जी, Swami Vivekananda was present at the time and he objected marriage proposal, saying that the girl was not pretty and her skin was too dark. Maharaji, it appears that Swamiji was considering the external beauty and not the spiritual aspect. Maharaji, just for thinking, I am not criticizing. हाँ, यानी इनके दिमाग में ये बात आई है. सुनो 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 जी. वो भी स्वामी जी भी जानते थे कि हाँ. उपेंद्र जो है वो संसारी व्यक्ति है. अच्छा हाँ, he is not interested in spiritual side. जी. He is a worldly person. तो उन्होंने उनको वर्ल्डली एडवाइस दी. नहीं नहीं, पर यहाँ दूसरी एडवाइस दी है. स्वामी विवेकानंद was present at the time and he objected marriage proposal. He objected. He has not supported Thakur. No, लेकिन वो ऑब्जेक्टेड मैरिज प्रपोजल उसके लड़की को लेके. अच्छा ओके. Okay, now next question. But I know बाद में भी वर्णन बाद में भी आता है. हाँ. उसके बाद उपेंद्र के घर पे गए तो उसकी पत्नी नाराज हो गई स्वामी जी से. हाँ है ना? जी जी जी. हाँ, तो स्वामी जी ने कहा, क्या तू कुछ भी कर, मेरे को खिलाना तो पड़ेगा. तू उपेंद्र की हो गई है तो मेरे को खिलाना पड़ेगा. That was absolutely ये सामाजिक सांसारिक व्यवहार था. हाँ, next question. But I know his wish that his small door should be big, and it will be. Maharaji, in this sentence, what is any spiritual meaning behind it? This sentence, कि small door है, उसका दरवाजा बड़ा है और छोटा है, बड़ा हो जाएगा, मतलब उसको पैसे ज्यादा आएंगे, वो ज्यादा पैसे वाला हो जाएगा. यानी छोटे दरवाजे से कम पैसा आ जाएगा, बड़े दरवाजे से ज्यादा पैसा आएगा. हाँ, अच्छा, it was just for money, sir. It was said. Okay. Now my next question, number 6. On 1st January 1886 at Kasipur, see, Ramakrishna became a wish-fulfilling tree and blessed many devotees. That day he asked Upen, what do you want? Money?
you will get plenty of money, said the master. It would be an injustice to Upendra, however, if the reader thought that he was only money hungry. His life indicates that he had true devotion for the master along with the ambition to acquire wealth. Maharaj, what the things one could have? अरे जितने गृहस्थ सुनो, जितने गृहस्थ है 90% गृहस्थ होते हैं वो भक्त भी होते हैं और पैसा भी चाहते हैं। तो क्या समझ रहे हो भाई? अगर भक्त हो गया ना तो सिद्ध हो जाएगा, सिद्ध मुक्त हो जाएगा। कोई मुक्त तो होता नहीं है जी। भक्त होते हैं। 30% भक्त है, ठाकुर के भक्त तो हैं। उत्सव होगा, खूब झूम के आएंगे, डोनेशन भी करेंगे आश्रम को, लेकिन जी, संसार जी। भी तो चलाएंगे। हाँ, वो मेरा हाँ, पूछना तो फिर था। मंदिर मंदिर बनवा देंगे, पैसा खूब डालेंगे, भंडारा देंगे। हाँ, ये कौन करेंगे? बिल्कुल। सब गृहस्थ करेंगे। यस। तो गृहस्थ भक्त करेंगे तो पैसे से तो करेंगे। ओके। तो जी, जी। जितने भी भक्त है, गृहस्थ भक्त हैं, सब इसी प्रकार के होते हैं, भक्त होते हैं। सन्यासी भक्त और गृहस्थ भक्त में अंतर करना पड़ेगा ना भाई। जी, जी। तो ये हम सेकंड इस कैटेगरी में हम आ रहे हैं, इस कैटेगरी में आएंगे। ओके। हाँ, ओके, ओके जी महाराज जी। तो महाराज जी ये जो यदि हम इस कैटेगरी में आते हैं तो टू सम एक्सटेंट वी आर नियरर टू ठाकुर। डेफिनेटली जो लोग ठाकुर के पास में नहीं है और सन्यास गृहस्थ है, उससे तो तुम 10 गुना अच्छे हो भाई। जी, अच्छा, ओके, राइट। दिस इज योर ब्लेसिंग्स महाराज जी, योर ब्लेसिंग्स। नेक्स्ट, by the grace of the master, his wife was saved. Maharaj ji, in this incident, how his wife has come into picture? यहाँ पे पिक्चर में वाइफ तो थी नहीं पूरे समय में, and he has written that his wife. वो यही बता रहे हैं, उन्हीं भगवान की कृपा की बात बता रहे हैं और कुछ नहीं। Okay. Now next question. Maharaj ji, Upendra was illiterate. Then how he become a big publisher of books and magazines? Is it Thakur's blessings? नहीं, इलिटरेट होने से क्या होता है? अरे उसने बिजनेस कैपेसिटी कितनी ज्यादा थी, देखो तो, पूरा पढ़ के देखो। हाँ, वो पूरा है, बिल्कुल है। यस। हाँ, तब मकान बना लिया, प्रेस चला रहा है, पढ़ा नहीं लिखा हो लेकिन कितना करा था, कितना ज्यादा, कितना बिजनेस कैपेसिटी कितनी ज्यादा थी इसकी, देखो तो। हाँ, वो मेरा वही सवाल तुम तो जानते हो, तुम तो ये जानते हो, मार्केट में हो, तुम जानते हो इस चीज को, कितना सब कला चला रहा है। हाँ, तो पर इनने जो चलाया उस पर ठाकुर के कहीं ना कहीं तो कृपा होगी, तभी ये कर पाए ना। कृपा हो तो हो, न भी हो, लेकिन अगर आदमी बिना पढ़ा लिखा भी हो तो भी बिजनेस चला लेते हैं कि नहीं संसार में? हाँ, बिल्कुल। जी, चलाते हैं। अच्छा, तो फिर he will come in this चलाते हैं। Okay, he will come in this category. महाराज, मेरे ख्याल से दिलीप भैया पूछ रहे हैं कि बिजनेस तो चला लेते हैं, इज अंडरस्टूड, मगर शायद वो कह रहे हैं कि उन्होंने किताबें भी लिखी हैं और आर्टिकल भी लिखी नहीं है, पब्लिश की है और मैगजीन पब्लिश की है। यस, राइट। है कि लिखी नहीं है? लिखी कुछ भी नहीं है। नहीं, लिखी नहीं है, पब्लिश की। यस। नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Maharaj ji, a poor, uneducated Upendra living in Mama's house in poverty and did not get father's love and affection and always run after money, and also when Thakur asked him what he wants, he said money, married and having a children, having always a silver stick in his hand and a Burmese cigar in his hand. How he became Thakur's grudge devotees, Maharaj ji, सब कुछ इस दुनिया की चीज उनके पास थी। अरे दुनिया के जितने गृहस्थ लोग होते हैं सब दुनिया की चीजें लेके रहते हैं कि नहीं रहते हैं? और फिर भी मंदिर जाते हैं कि नहीं सुबह शाम? मंदिर, अरे मंदिर जो जितने सारे मंदिर बने हुए हैं इन गृहस्थों से ही तो चलते हैं, ये सोचो तो। नहीं, और ये गृहस्थ जो है उनके पास पैसे वैसे खूब रहते हैं,
हाँ, मंदिर के मैनेजर ने कहा कि जरा हमारा ऊपर का चूड़ा जैसा बढ़ा देना पड़ेगा, तो तैयार हो बन जाते हैं जाता बनाने के लिए। है। फिर हाँ, हाँ, नहीं तो तो उसमें महाराज जी, क्या है? इवन देन दिस इज ए वे टू द नियर टू द गॉड, टू गो टू द नियर टू द गॉड। नहीं नहीं, वो साधक नहीं है। ओके, ओके महाराज जी, माय लास्ट क्वेश्चन इन हरमोहन मित्रा, according to the Hindu scriptures, it is a blessing to the recipient of the Lord's anger if an unmotivated, all living, all compassionate God shows displeasure towards anyone. It is for that person's own good. If a living mother uses force when disciplining her untruly child, it does not mean that she is cruel. Caring for her children and thinking of their future, she chastises them, even though it pains to her to do so. At the time, the immature, rebellious child may resent his or her mother, but later, as an adult, he or she can only be grateful to her. Now, my question here, Maharajji, it is said that whenever God does for us is good, for our good. But when God punishes us, whether it is painful to God, also it pains to mother when she punishes child. आज हमारा पता पनिशमेंट जो हमको देखो, जी हाँ महाराज जी। देखो, दुख तो भगवान ने हाँ, कितने कितने अवतारों में कितनों को दुख किया है। हाँ, हाँ किया है। राक्षसों को मारा है, और हाँ, वो क्या क्या बने हैं, क्या क्या कर हाँ, कुरा के इतना तुमने मारा करा है। तो वहां पे जी तो जी, जो वराह वराह हाँ में वो है, तो वराह में गुस्सा नरसिंह दिखाई अवतार, देता है। हाँ नरसिंह मछली अवतार और में हुआ। वराह वराह अवतार में तो गुस्सा दिखाई देता है, और हाँ, नरसिंह अवतार में तो क्रोध दिखाई देता है। खाड़ तोड़ जी, उसको हाँ, उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार रहे हैं गुस्से में आके। तो देखो जी, भाई, अब तुम देख लो, भगवान को भी गुस्सा आता है। जब नरसिंह अवतार लिया तो गुस्सा आया उनको। नहीं पर उसके बाद भगवान को भी दुख होता है, जैसे माँ को भी दुख होता ही है, लिखा हुआ है कि भगवान ने हाँ? ये किया, पर भगवान को दुख होता है कि ये बेचारे को जबरदस्ती बहुत ज्यादा इसकी गलती के कारण पिटाई हो गई। वो क्या करे, वो जानते हैं कि ये मेरा ही, अब मैंने ही जानबूझ के किया है ये सब, मेरी हाँ, ही हाँ, लीला हाँ, है। जी माँ जी, नहीं जानती कि ये मेरी लीला है, लेकिन भगवान जानते हैं कि मैंने वराह को बताया है, मैंने नरसिंह को बनाया है, तो मैं हाँ, इनको मारूंगा भी। तो भगवान जानते हैं कि ये लीला है मेरी। माँ नहीं जानती है कि ये उसकी लीला। ओके, 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 राइट महाराज जी, प्रणाम नमस्कार जी। सतीश। जी प्रणाम महाराज। हाँ नमस्कार। पर मेरा एक क्वेश्चन है, पूछेगी। एक मिनट महाराज। क्लियर नहीं है, बोलो ठीक से, लाइन एंगल ठीक लगाओ तुम्हारा जी महाराज, फोन का। मेरा एक ही मेरा अब ठीक है। आई हैव ओनली वन क्वेश्चन। डिजायर फॉर वर्ल्डलीनेस और वर्ल्डली सक्सेस हार्मफुल टू वन स्पिरिचुअल लाइफ। महाराज हमारे Yes. में रहती है, सारी लोगों में वर्ल्डलीनेस की और वर्ल्डली सक्सेस की डिजायर रहती है, तो ये कितनी हार्मफुल, कितनी हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, ये पूछना है मेरा क्वेश्चन। देखो, सब वर्ल्डली डिजायर जो है वो अगेंस्ट स्पिरिचुअलिटी है, याद रखो। जी महाराज, जी महाराज। बट हमको उनको कुछ न कुछ थोड़ा फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद उससे फ्री होकर स्पिरिचुअल लाइफ में हमको डिवोट करना पड़ेगा। जी 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 महाराज। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ हाउ मच, 20%, 30%, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर ऑल हार्मफुल। धीरे धीरे उनको कम डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, फुलफिल करना पड़ेगा। या तो फुलफिल करो या विचार से दूर करो,
इच्छाओं को दूर करना पड़ेगा, या भगवान की तरफ कंटिन्यूसली जाओगे तो अपने आप इच्छाएं जो है वो कमजोर होती चली जाएगी। ये सारी इच्छाओं का सारा फिलॉसफी और साधना दी है। लेकिन कोई भी डिजायर जो होगी वो डेफिनेटली बाधा बनेगी। जी राइट। पर महाराज क्या है कि हम संसार में रहते हैं तो हम घिरे रहते हैं हर तरह की चीजों से, लोगों से, तो कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि करना ही पड़ता, ठीक बात, क्या करें हम। जी प्रणाम महाराज। सुचरिता सेन जी प्रणाम महाराज जी। I've got only one question Maharaj ji, and that is from Harmohan Mitra chapter. So my question is how the story of the elephant god and the Mahut god is related with the doctrines of free will versus predestination and self-effort versus the will of God, as explained by Swamiji to Harmohan Mitra. तो स्वामी जी ने तो 3 दिन तक एक्सप्लेन किया बात है। 3 दिन तक हम तो जानते नहीं कि क्या एक्सप्लेन किया उन्होंने, क्या नहीं है। देखो, केवल एलिफेंट अगे होवे, महावत नहीं हुआ तो क्या है, वो फ्री विल है, जो मर्जी में आए करेगा। यस। सॉरी, एको आ रही थी, सैमसंग में से एको आ रही थी। स्वामी जी आप अनम्यूट कीजिए, आपके म्यूट हो गया गलती से। वो महाराज जी को सुना ही जाता है, महाराज जी को सुना ही जाता है। महाराज जी अपना को बोलते हो सुना ही नहीं। अब सुन रहे, अब ठीक। देखो, पहला ये है कि हाथी केवल हाथी है, इट रिप्रेजेंट्स प्योरली फ्री विल, नो महावत, नो कंट्रोल। जब महावत आया तब कंट्रोल आया। जी। अच्छा, फ्री विल यानी I do what I want. Predestination is as God wills. अच्छा, सेल्फ एफर्ट, महावत जा गया तो ये सेल्फ एफर्ट करने लग गए हम। और जब कोई महावत नहीं है तब गॉड्स विल हो रहा है, अपने आप हो रहा है। हम सेल्फ एफर्ट जैसे ही हमने लगाया, मतलब ये है कि हमारे जीवन में महावत आ गया है। हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन हम अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। फर्स्ट, डू यू हैव द प्रॉब्लम और नॉट? पहली बात ये बता। यू सी, इसके ऊपर यानी हमारे जीवन में हम 80% तो फ्री विल होती है हमारी, लेकिन सांसारिक बातों से हम काफी कंट्रोल होते हैं। हम जैसा चाहे वैसा नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीजें सदा मिली हुई रहती हैं। फ्री विल में जो मर्जी में करें, लेकिन गॉड्स विल आ जाती है। प्री डेस्टिनेशन नहीं कर सकेंगे। मैं चाहूं तो भी 150 वर्ष में जी नहीं सकता, मेरी फ्री विल है 150 वर्ष जीने की, लेकिन प्री डेस्टिनेशन आ गया, गॉड्स विल आ जाती है। तो एक होता है मेरा सेल्फ एफर्ट और दूसरा होता है गॉड्स विल। तो ये चीजें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हैं और एक दूसरे के साथ चलती रहती। हमें अपना फ्री विल करने के साथ में हमेशा ध्यान रखना चाहिए, गॉड्स विल की प्रार्थना करती रहना चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा, जैसा आप चलाएंगे वैसा मैं जी जी। तो दीज टू थिंग्स हमेशा बनाए रखना है। तो हम जब
मॉर्निंग में प्रार्थना करने जाते हैं ना, ठाकुर को प्रार्थना करते हैं, तो अब ये भी कहते हैं कि प्रभु आज ऐसा दिन दीजिए कि मैं आपके इच्छा अनुसार चलूं। आई लॉर्ड गिव मी दिस डे टू सर्व दी बेटर। आपकी कृपा अच्छा हो, मेरा मन जो है वह अच्छे मार्ग में जावे, आपकी इच्छा मेरी इच्छा होवे। दाई विल बी माई विल, दाई वे माई वे। यस यस, मैं आपके निकट जाऊं। ये प्रार्थना हम कभी करते हैं कि प्रभु आपकी इच्छा मुझे सारे दिन प्रेरित करती रहे। इस प्रकार से धीरे धीरे मन जो है वो भगवान के अभिमुख होता जाता है। ऐसा करने पर उसके बाद में ये फ्री विल और डेस्टिनेशन का जो झगड़ा है वो धीरे धीरे कम होता है। उसके बाद में लगता है फ्री विल यानी क्या, जैसा होने वाला है हमारे मन में उसी प्रकार की इच्छा भी उठती है। जी ठीक है जी 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 महाराज। महाराज जी, वन जी क्वेश्चन, महाराज। ये फ्री हाँ। विल एंड गॉड्स विल गोज साइड बाय साइड पैरेलल। संसार जो है वो गॉड की विल से चल रहा है ना। हाँ वो गॉड विल पे, पर मेरा जो दिमाग रहा है। चल रहा है अभी वो तो मेरी फ्री विल पे चल रहा है, और मैं हाँ चाहता हूँ हाँ कि हाँ गॉड हाँ विल पे चले, तो दोनों हाँ 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 पैरेलल हाँ। जाएगा। नहीं नहीं, पैरेलल नहीं, ऐसा है कि एक स्थिति ऐसी आ जाएगी, निरंतर प्रार्थना कर दोगे कि प्रभु तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं चलूं, तो हाँ तुम हाँ जैसा हाँ जैसा प्रभु चाहोगे वैसा चलने लगेगा। ओके जी, ये अब सोच के चल रहे हैं। उदाहरण के लिए देखो, हम लोग यहाँ पर हैं, तो हम हाँ लोग सुबह मंदिर में जाते हैं, प्रणाम करते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, सब कुछ जीवन व्यतीत करते हैं। ये हाँ अपनी इच्छा से करते हैं कि भगवान की इच्छा से कर रहे हैं? ये तो भगवान की इच्छा ही से तो सारा आश्रम चल रहा है। एक प्रकार से जी भगवान ने जो नियम बनाया उसके अनुसार चल रहा है। हाँ तो हमारी हाँ कहाँ फिर खाना खाना खाने जाते हैं, बैठते हैं, तो जो खाना आ गया वो खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल जरा से बराबर। फ्री विल, जरा सी फ्री हो जाती है कि भैया जरा एक केला और दे देना, तो ये जरा सी इतनी हाँ हाँ फ्री विल हो गई। बाकी तो सब और भगवान की इच्छा से चल रहा हाँ 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 महाराज जी, तो ये जो है। केला मांगा वो मेरी फ्री विल कहलाएगी। मेरी फ्री विल हो गई। ओके राइट, बट गॉड इज नॉट बिहाइंड इट, गॉड इज नॉट बिहाइंड इट। नहीं नहीं, गॉड तो सब कुछ चला रहा है ना, जो भी हो रहा है वो गॉड विल से हो रहा है। अच्छा, तो जो मैंने एक केला मांगा ये भी गॉड की डिजायर से है? नहीं नहीं नहीं, ये मेरी फ्री विल हुई तो। ओके 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 जी महाराज जी। जो मुझे जी खाना मिला, उसके हाँ बाद में वो आया, दूसरी बार रोटी 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 करके आया, तो मैं 2 रोटी और ले ली। हाँ हाँ तो हाँ इसमें तो भगवान की इच्छा भी थी, रोटी भगवान ने भेजी थी, और मैंने भगवान की इच्छा से 2 रोटी भी ले ली। अच्छा ये यानी हाँ गॉड्स विल भी हो गई और मेरी इच्छा भी हो गई। हाँ बराबर जी जी जी, राइट महाराज महाराज। बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ये गॉड की विल है कि हमारी विल है, कुछ समझ नहीं आता कभी कभी। ऐसे कभी तो लगता है सब कुछ उसी की इच्छा से हो रहा है, और कभी कभी जी हम हम भी लोग लगता है कुछ कर रहे हैं। हम लोगों को तो हमेशा है ना कि हम लोगों का तो रूटीन ऐसा हो गया है कि ये जैसा गॉड्स विल है वैसा ही रूटीन हो गया। चलो निवेदिता। यस जी महाराज। प्रणाम महाराज महाराज। पहला क्वेश्चन मेरा है, ये जो वर्ल्डली लव है जो आपने अभी अभी हम लोग ने डिस्कशन किया, हस्बैंड वाइफ का जो पहला वाला क्वेश्चन है, इस अटैचमेंट है ना, ये दिस इज अटैचमेंट, हाउ कैन इट बी कॉल्ड एज स्पिरिट, ये मैं पूछ रही। नहीं नहीं, स्पिरिट नहीं, ये पॉइंट इज, ये हाँ अटैचमेंट भी जो है ना, सुनो, हाँ ये हम खाना खाते हैं तो हमने हाथ से खाया ना, तो जी फिजिकल जी हो गया। हम्म अच्छा, मैं बातचीत हम कर रहे हैं, ये मेंटल हो गया।
हाँ माइंड के लेवल पे हो गया, लेकिन हर लेवल के ऊपर अंततः एवरीवेयर देयर इज द स्पिरिट। यस हाँ हाँ जी, ये तो दैट इज व्हाट इज बीइंग टोल्ड हियर। इसका ओके मतलब हर आनंद जो भी है, आत्मा वर्ल्डली आनंद है देखो, या कुछ। हाँ, सुनो सुनो, हाँ, ए आत्मा जैसे है ना, कुत्ता है, जी कुत्ते ने खाना खाया, मीठा लगा, खा लिया उसने, पर वो केवल माइंड के लेवल पे रहा है, स्पिरिट के लेवल पे नहीं गया है। अच्छा हाँ, जो हमारा यहाँ पे ये है, हम खाना खाते हैं, उसके पीछे अगर हम सावधान रहें, सदा सर्वदा एक स्पिरिट का रिफ्लेक्शन पड़ता रहता है हमेशा, और ठीक इस है हाँ, चीज को बढ़ाना चाहिए। जी पर आप राइट ऐसा कहे, कुत्ते में भी तो आत्मा भी होती है ना, कुत्ते में नहीं नहीं, तो जैसे वो वो नहीं, वो माइंड के लेवल मैनिफेस्ट में। नहीं होती। पॉइंट इज मैनिफेस्ट नहीं होती। हाँ मैनिफेस्ट नहीं हो, ठीक, ठीक है, हम यहाँ पे समझ गए हमने, मारा। अगर आपने, हमने क्या है, एक फीलिंग जो है, मैटर मैटर है, तुमने लड्डू खाया, तो जी ये हमको मीठे मीठा का स्वाद का एक्सपीरियंस, हम समझे थे लड्डू में मिठाई है, लड्डू में हाँ ठीक, लड्डू मीठा है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को तो लड्डू मीठा नहीं लगता। अगर तुम्हारे जीवन में बहुत गहरा दुख होवे तो उस दिन मीठा नहीं लगेगा लड्डू। हाँ जी बिल्कुल बराबर। मतलब, बिल्कुल हाँ, मतलब ये कि उसके पीछे कुछ है। मन है, मन भी अगर बुरा होगा तो उसमें भी कुछ नहीं होगा, अच्छा नहीं लगे, हाँ उसके पीछे कुछ है, हम्म, उसको बोल रहे हैं स्पिरिट। हाँ हाँ, बहुत अच्छे से और समझ गया। साधक को उस स्पिरिट लेवल पर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। नहीं तो वो हमेशा यार फिजिकल लेवल पे लड्डू खाया तो बड़ा बढ़िया लड्डू बना है, इसमें होगा, और यदि किसी ने प्रशंसा कर दी तो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। उस सारा जीवन जो है वो शरीर और मन के लेवल पर चलता रहता है, स्पिरिट के चलता लेवल पे रहेगा, नहीं आता। वाह, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज समझ वेरी लेना चाहिए। इम्पोर्टेंट, हाँ हाँ एक मिनट महाराज जी, एक सवाल आपके इजाजत से। महाराज जी ये आपने बिल्कुल सही बताया लड्डू वाला केस। अब इसी के अंदर एक अमेंडमेंट मेरा छोटा है। घर में शादी ब्याह है, लड्डू बने हैं, और उसी समय किसी की मृत्यु हो गई, तो अब ये जो हमको लड्डू अच्छे नहीं लगेंगे, तो इज इट अ स्पिरिट और समथिंग एल्स? नहीं नहीं, ये तो मन के लेवल पे मन हुआ। मन से हो जाओगे, मन के लेवल में हो जाएगा। अच्छा ये मन के लेवल स्पिरिट, पे गए। हाँ, तीन 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 लेवल बताया, स्पिरिट का लेवल उससे भी ऊपर है। हाँ 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 समझा। हाँ, अच्छा जी जी, ये मन के लेवल पे ही खत्म हो जाएगा। राइट महाराज जी। हम्म। जी दूसरा जो सेकंड, प्रश्न है वो महाराज, दूसरा प्रश्न है कि ठाकुर बार बार क्यों उपेंद्र के फूड को रिजेक्ट करते थे? हाँ व्हाई ठाकुर टेक व्हाई ही कुड नॉट टेक द फूड फ्रॉम उपेंद्र? ये yes, खाली चित्त शुद्धि के कारण? नहीं नहीं, वो उससे नहीं लेते थे ना, फिर एक बार ले लिया, हाँ हाँ हाँ, हाँ एक बार ले लिया, उसको हाँ उस पर कृपा करने के लिए, अच्छा हाँ और उसके बाद कृपा हुई तो उतना पैसे वाला हो गया। हम्म हाँ। और ठाकुर को दिखा ठाकुर भी का है, अरे ये इतना लाता है, लेट मी टेक इट, थोड़ा सा एक अच्छा टेस्ट कर लिया ठाकुर ने, और उसको करते करते ही उसकी समृद्धि होने लग गई ना, पैसा आने लग गया। हाँ। महाराज ठाकुर कभी कुछ समझता नहीं ना, कभी किसी पे कृपा करेंगे, कभी किसी पे नहीं। चलो चलो, तीसरा प्रश्न है, सेविंग ए कल्प्रिट अगेन एंड अगेन, टेकिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन हिमसेल्फ एंड टेलिंग द अनट्रूथ ऑल्सो, इज इट गुड क्वालिटी फॉर ठाकुर डिवोटी? जो ये बार बार 3 लोगों को उन्होंने बचाया ऐसा ना। है, देखो देखो, उसने, उपेंद्र ने एक आदमी को बचाने लिए किया, हाँ यानी उसके कल्याण के लिए वो बार बार खराब काम कर रहा था, फिर भी उसको बचाया, हाँ हाँ जिससे
वो कम से कम बच जाए बाबा, उसको नुकसान नहीं हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये आइडिया। अच्छा, हाँ, मतलब भाव उनका अलग कई था, भाव। बार आप संसार में देखेंगे, कई बार आप देखेंगे कि एक आदमी ठीक ही है, अच्छा ही है, लेकिन दो चार बार उसने बदमाशी कर ली है, जी अब वो पुलिस के पास जाने वाला है, आप हम्म, उसको इस तरह से करके बचा लो पुलिस से, और उसके बाद उसको ठीक कर दो, हाँ, यस और नहीं तो उसके ठीक, पुलिस में जाने के बाद जीवन दूसरे प्रकार का हो जाएगा। ये चीजें कंसिडर करके उसने ऐसा। अच्छा अच्छा, हाँ, जी जी जी। अच्छा। और एक प्रश्न है कि डिड उपेंद्र नाथ टेक दीक्षा फ्रॉम एनीबडी और फ्रॉम whom? ऐसा है कि कहाँ से दीक्षा ली, आई डोंट नो। हाँ, कहीं तो लिखे, मैंने पढ़ा देखा है कि उसने कहाँ से दीक्षा ली, ठाकुर से दीक्षा का कोई इंडिकेटेड तो लिखा नहीं किताब में, कहाँ से दीक्षा ली उसने मालूम। अच्छा, उसके बाद है व्हाट वर द हिज वर्ल्डली टेंडेंसीज फॉर विच द ठाकुर वाज इनडिफरेंट टू हरमोहन। ये तो हम लोग को नहीं पता लगेगा, मतलब हरमोहन के प्रति ठाकुर का क्या इनडिफरेंट है ना उनके प्रति। फैमिली को छोड़ के वाइफ के साथ चला गया इसलिए। पता नहीं, यानी ऐसा है ना कि ठाकुर ने क्या किया है, हाँ, यानी वो क्या है कि चौथा क्वेश्चन है लिबरल माइंडेड, क्या है फिर से हाँ, पढ़ो तो क्वेश्चन तुम्हारा। 354 है, 354 पेज में व्हाट वर हिज वर्ल्डली टेंडेंसी, हरमोहन्स वर्ल्डली टेंडेंसी फॉर विच ठाकुर वाज इनडिफरेंट टू हरमोहन। अब भाई कुछ होगा इसमें, तो क्या है कि जीवनी बहुत हाँ शॉर्ट है। हाँ, शिवनी बहुत हाँ, शॉर्ट है, नहीं तो। बहुत शॉर्ट है, हाँ तो इसके ऊपर कहना मुश्किल है कि कौन सी टेंडेंसी थी और क्यों ठाकुर हाँ, इंडिफरेंट थे, क्यों ऐसे। लेकिन ठीक, बताते हैं। अच्छा, चलो, नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वीट कैथोलिक नेचर। ये जो चेतनानंद जी लिख रहे हैं ना, स्वीट कैथोलिक नेचर, तो उसमें मैंने ये गूगल। होता है ब्रॉड ब्रॉड लिबरल ब्रॉड माइंडेडनेस, हाँ हाँ यानी एक टेक्निक मैंने देखा लाइक डिक्शनरी में, हाँ कैथोलिक का अर्थ होता है ब्रॉड माइंडेड, लिबरल ब्रॉड माइंडेड। हाँ हाँ कैथोलिक यानी रिलीजन नहीं, यहाँ पे कैथोलिक हाँ हाँ क्रिश्चियनिटी नहीं, यानी आदमी जो कैथोलिक यानी वो ब्रॉड माइंडेड है, लिबरल है, उदार है, ये है हाँ हाँ, कैथोलिक। उदारता। कैथोलिक उदार। हम्म, अच्छा, उसके बाद है ऑल्दो मास्टर withheld his blessing on the Kalpataru day, but he bestowed on later part of life. How can it be explained? हरमोहन का। ऐसा है कि ठाकुर ने ये हाँ बात केवल हरमोहन ने कही, उन्होंने कई लोगों के साथ की है कि गए हाँ कल्पतरु दिवस के दिन जाने के लिए कभी गए, नहीं आज नहीं हुआ। ऐसा उन्होंने ठाकुर ने एक नहीं कई लोगों से किया। हाँ आश्रम में ठाकुर के पास में भी कृपा करने जा रहे, कृपा लिए जा रहे हैं, लेकिन नहीं नहीं आज नहीं हाँ होगा, आज मेरे पेट खराब है, मैं नहीं हुआ। ऐसा ऐसा जी ठाकुर ने उन लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं, अपनी इच्छा अनुसार, और पता नहीं क्या क्या चीजें देख दाख के, और अवॉइड किया कृपा करना, और बाद में जाके कृपा की। अब तुम अगर ठाकुर को ठीक से फिर से पढ़ोगे तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत मिल जाए। बहुत सारे हैं, हाँ, पर मेरा प्रश्न तो ये है कि बाद में कैसे कृपा, उसको हम कैसे समझ सकते, कृपा कौन सी कृपा की, मतलब अब उसका तो की ज्यादा गई ना डेवलपमेंट बाद नहीं में हुआ ऐसा लगता है, मतलब पढ़कर। हाँ, है। मतलब ये आर्टिकल पढ़ के ऐसा लगता है जे साधारण भक्त है, ऐसा लगता है हम लोगों को।
नहीं नहीं, वो ठीक है ना, जो भी सारा भक्त तो है ना ठाकुर का। हाँ 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 तो अब वो नरेंद्र भक्त और उपेंद्र भक्त में फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ जी जी। तब महाराज जी, ठाकुर की कृपा तब होती है कि जब ठाकुर की दृष्टि में हम अधिकारी बन जाते उस लायक। उतना केवल कृपा के वो देखते हैं उनके क्या अरे दोष भरे हुए हैं इसके अंदर, लेक्चर दे नहीं हाँ सकता, कुछ काम नहीं कर सकता Yes. है, फिर भी कृपा कर दी। हाँ, तो ये आध्यात्मिक कृपा और ठाकुर जैसे लोगों की के द्वारा कृपा के बारे में कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। बता नहीं ये बराबर। सकते। हाँ ये तो। जी महाराज जी। महाराज ये जो लेटर लाइफ में उसकी कृपा हुई, वो किस प्रकार हम समझ सकते, ये मेरा प्रश्न है। अपनी भी होगी लाइफ में। नहीं नहीं, हरमोहन के लाइफ में कौन सी कृपा से हम समझ सकते हैं कि ये ठाकुर की कृपा है? ये नहीं कृपा साधु के सेवा, अंदर साधु सेवा है ना, और नहीं साधु सेवा। हाँ, अरे वो कितना साधु सेवा करता था वहां पे। हाँ जी जी। अरे कितना कितना कितनी साधु साधु सेवा, लोगों की क्या? सेवा, उदार कितना था, हाँ सोचो तो। उद्गार। हाँ हाँ, जी ऑर्डिनरी था, भगवत भक्त नहीं था ये गृहस्थ। जी जी कितना, जहाँ देखो वहाँ, जहाँ भी इच्छा हो, जहाँ जरूरत हम्म, पड़ी वहां पे पैसा खर्चा कर रहा है। हाँ यानी कि, कर्जा लेके कर्जा लेके हम्म लोगों की सेवा कर रहा है, लोगों को दे, हम्म केवल भक्तों को नहीं, साधुओं को नहीं, सबको दे। हम्म। इतना बड़ा उदार व्यक्ति, और ऐसे पे ठाकुर कृपा नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे, किस पे करेंगे? यस ठीक है, बस महाराज इतने प्रश्न। जी। कोई नहीं, ठीक है, बंद करें। जी अच्छा सुनिए, हाँ जी ये किताब समाप्त हो रही है। नहीं हाँ महाराज जी, अब नेक्स्ट किताब क्या लेना? महाराज जी वो छोटा नरेंद्र बचा है, छोटा नरेंद्र। जस्ट मिनट लेके एक आ दो रहा है दो बेटा। आर्टिकल बचे। हाँ वही 2 आर्टिकल बचा, छोटा नरेंद्र है। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी चलो देखने दो वो स्वामी जी वो की एक क्या देख रहे, मिनट बुक देख रहे। रुकने कुछ बोले हैं। नहीं, मैं सोच रही थी कैन वी टेक अप स्ट्राइव टू अटेन गॉड बाय स्वामी विरजानंद। इट्स अ वेरी गुड बुक, इट्स अ स्मॉल बुक। क्यों? वो परमार्थ प्रसंग का ही तो इंग्लिश है ना? हाँ, परमात्मा प्रसंग तो इंग्लिश है, बट दिस स्ट्राइव टू अटेन गॉड is very simple and it's a specific book written by Swami Virajananda. सिंपल में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, नहीं हो सकता। हाँ, बहुत क्वेश्चंस आते हैं। ये निवेदिता जी, if you read it in the first chapter itself, you will get at least 20 questions. वेरी गुड, देन इट इज ऑल राइट। कौन सा बुक है वो, कौन सा बुक? परमार्थ प्रसंग? No. Strive to attain God. ओ Swami Virajananda. जी ओके। That is अभी one book, महाराज and there is also another book. Seeing God with open eyes, Swami Chetananda. I don't know how whether यस people. इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। It is very good. यस But I thought that Swami Virajananda's book, though it is small, it is very profound. And it, यस I mean, up to now we are doing Vedanta and we are doing the devotees' lives. Whether that would be good. If we can finish that small book and then we can go on to seeing God with open eyes. हाँ महाराज कहाँ है? महाराज गए बुक देखने। नहीं महाराज म्यूट किए हुए हैं और वीडियो बंद किए हैं और हैं अभी यस बने हुए हैं, चलो तो ऐसा दिख रहा है। बंद जी। वो किताब देखने गए।
हाँ, हेलो हेलो। हाँ हाँ जी बोलिए जी महाराज। जी प्रणाम हाँ, स्वामी मैं जी। ये बोल रहा हूँ कि आपके सजेशंस अबाउट द नेक्स्ट बुक हाँ, जी विद इन 24 आवर्स आप SMS करके मुझे भेज दीजिए। ठीक है। राइट हाँ जी। ओके SMS विद इन 24 आवर्स आपके क्वेश्चंस, जो कोई किताब जो कौन सी लेनी है उसको आप लोग सब करके मेरे को भेज दीजिए। ठीक है, ओके, राइट जी महाराज ठीक। अच्छा, नमस्कार। प्रणाम प्रणाम महाराज। राम महाराज महाराज। आपका नमस्कार। दिख नहीं रहे हैं आप। प्रणाम शांति आपका मंत्र वीडियो